Hello everyone, good morning. I couldn't send any video yesterday, it was Sunday, and even I was getting bored. So, anyway, I thought let's have a holiday on Sunday. Okay, so it's okay. So, from today, we'll continue, we'll be regular. It's Monday today. We will try to finish this topic within 2 days and we'll start science. Maybe from Wednesday, we will continue or complete one of the topic of science. Anyway, first of all, let us revise what we have done. You must have forgotten that is properties of parallelogram. We were at there, and we solved few questions based on some properties of parallelogram. So first of all, let us revise properties of parallelogram. Opposite sides are equal and parallel. You can see, read it from the board. Opposite angles are equal. Very very important property. Opposite angles are equal, but adjacent angles are supplementary. Okay, so if you want, I will just draw the diagram for you. So here we have parallelogram ABCD. If it is parallelogram ABCD, opposite sides, that means ये और ये equal होगा, at the same time parallel भी होगा, ठीक है. Then opposite angle, I mean to say angle A and angle C will be equal, and angle D and angle B will be equal. Adjacent angles are supplementary. That means angle A plus angle D will be equal to 180 degree. Similarly, D plus C 180, and similarly B plus C 180, and so on for A and B as well. Now diagonals of parallelogram bisect each other. That means if I draw the diagonal, it divides it in an equal part. So AO will be equal to OC and DO will be equal to OB. So this is what are the properties of parallelogram. Based on these properties only, we have the complete exercise ahead. So you must know these properties. I'll keep it here on this page every time. So whenever you miss the property or whenever you forget the property, you can come back to this page and get these properties revised. So let us see the first one. Can a quadrilateral ABCD be parallelogram if? So each one separately we need to understand. If D plus B is equals to 180 degree. So let us draw the parallelogram ABCD. Just imagine a rough diagram में draw करता हूँ. And if you have this as ABCD, angle D plus angle B, are they opposite angles? Yes. And what is according to parallelogram, opposite angles are supposed to be? Opposite angles are supposed to be equal. But here what is given? Angle D plus angle B is equals to 180 degree. Okay. And which is not the property of parallelogram. One thing is true, it is not a property of parallelogram. So it cannot be. It can't be parallelogram. Okay, it cannot be parallelogram. But sometimes it is possible to have a parallelogram with this property, that is angle D plus angle B is equals to 180 degree. So we will be discussing this in your next exercise. Okay, which type of parallelogram will have the same property, this kind of property, but not every time it is true. So हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? What we are going to write, because one thing is true के ऐसे तो कहीं नहीं बोला है ना कि opposite angles should not be supplementary. ऐसे तो नहीं कहा है, ऐसे तो नहीं कहा है. It is just said कि opposite angles are supposed to be equal. There can be possibility कि ये angle 90 हो and ये angle 90 हो. अभी चेक कर लो. तो angle D and angle B is going to be equal, as well as angle D and angle B is proving that it is equals to supplementary, or the sum is equals to 180 degree. So both the things are true. That means there can be possibility, not every time, but at least for one case, one condition, it is possible. So instead of saying that it cannot be possible, हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, may be and may not be. May be and may not be. So that quadrilateral ABCD may be a parallelogram or it may not be a parallelogram. So this is what the answer we got it for the first question. Got it? Second question. AB is equals to DC is equals to 8 centimeter and AD 4 and BC 4.4. Okay, so it is saying AB and DC equal है. AB 8 है, DC भी 8 है. चलो ठीक है. And AD 4 centimeter है and ये 4.4 है. तो ये तो क्लियरली पैरेललोग्राम नहीं है, एज ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट.
क्यों नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट बीइंग इक्वल हियर। ओके, सो इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं क्या है। थर्ड वन, लास्ट वन, एंगल ए इज इक्वल टू, अरे बाप रे, एंगल ए 70 है, ओके ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65। इट्स वेरी क्लियर इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर तो इक्वल नहीं है। तो थर्ड क्या होगा, इट्स वेरी क्लियर, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। दैट्स इट, सो वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो थर्ड वन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, है ना। चलो इस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ ऑन द सेम पेज आई हैव, तो आई जस्ट डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, वी विल यूज प्रॉपर्टीज। चलो देखते हैं, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो पहले तो ये नहीं होना चाहिए कि वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ओके, अपोजिट एंगल्स शुड हैव इक्वल मेजरमेंट, बट क्या नहीं होना चाहिए, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अपोजिट एंगल्स आर सपोज टू बी, ये रहा मेरा एक अपोजिट एंगल, आपको लग रहा है कि ये 90 है ना। तो ये हो गया मेरा ए, अभी मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे ए, क्योंकि पता नहीं दूसरा मैं कहाँ पे लिखूँगा, बट यहाँ पे मैं ए लिख लिया, सपोज इमेजिन। और एक अपोजिट एंगल चाहिए जो 90 हो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर एक 90 ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, ये 90 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री। चलो देखते हैं, ये है 90, ये भी है 90, लग रहा है ना 90 दोनों। तो ये है ए बी सी एंड डी। ओके, अभी ये तो पैरेललोग्राम नहीं है, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एंड चेक करो कि अपोजिट एंगल कैसा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो 90 हो गए, बट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या है, इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, डन, क्लियर। कोई भी काइट इफ यू ड्रॉ, इफ यू नो द काइट, देन ऑल्सो दिस आंसर विल बी ट्रू। जैसे काइट होता है ना, काइट, ये रहा काइट। काइट क्या होता है, इसके एडजेसेंट पेयर इंडिपेंडेंटली इक्वल होते हैं। तो एवरी काइट विल गिव यू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल पी एंड एंगल आर इक्वल होता है, क्यू एंड एस इक्वल नहीं होता, एंड ये पैरेललोग्राम तो है ही नहीं। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सो काइट कैन बी आंसर, एनी काइट यू कैन ड्रॉ, एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑलरेडी यू गॉट इट। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, लेट्स ट्राई द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। जब भी ये रेशियो आ जाए ना, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको अभी से। ओके, रेशियो हमने इक्वेशन में भी देखा था, यू रिमेंबर दैट, सेकेंड टॉपिक में रेशियो आता है तब हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ कॉमन मल्टीपल एज एक्स। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी रेशियो आता है तो उसको कॉमन मल्टीपल लेके एंगल्स को सेपरेट करो। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे 3:2 रेशियो है, तो लेट अस कंसिडर, if I consider the common multiple, understand it, as x, then those angles, वो एंगल का रेशियो है, राइट। तो रेशियो किसका है, एडजेसेंट एंगल का रेशियो है। ओके, दोज एंगल्स बी 3x एंड 2x हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखो, ये हमने इक्वेशन टॉपिक में देखा हुआ है फॉर फ्रेमिंग द इक्वेशन। स्टिल इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेट मी नो, आई विल जस्ट explain you the same in the next video, so put that as a doubt if you don't remember that. Okay, so common multiple as x
वी विल कंसिडर, एंड वो एंगल एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे 3x एंड 2x। तो 3x एंड 2x क्या है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल? प्रॉपर्टी देख लो, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर, थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स व्हाट, देयर एडिशन इज 180, बट एज देयर एडजेसेंट 3x प्लस 2x गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180। इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता है अभी। व्हाट इज x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, राइट, बराबर है ना। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30, 36 डिग्री हो गया। लेकिन अंडरस्टैंड, ये 36 डिग्री किसके वैल्यू है, x की वैल्यू है। पूछा क्या है, x थोड़ी पूछा है हमें। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। व्हाई व्हाट वी आर आस्क्ड हियर इज यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल कौन से पैरेललोग्राम के, इमेजिन करो ये है मेरा पैरेललोग्राम, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसके एडजेसेंट एंगल 2x एंड 3x है, ठीक है। इसका अपोजिट ये भी 2x होगा और इसका अपोजिट ये भी 3x होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मुझे ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, तो 2x 3x 2x 3x से मुझे फाइंड करना है। तो करना क्या है, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 विच इज 72 डिग्री, एंड 3x इज इक्वल टू 3 into 36, I think, which is 108, and other angles are going to be same, 72 and 108. So therefore angles of parallelogram are 72, 108 and 108 degree. That's it. Okay, isn't it very simple? कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज कर रहे हैं। आगे भी देखते हैं। ये थोड़ा सा रीडिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है आपको, मैं रीड करके दिखाता हूँ। यू हैव गॉट द सेम क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक एज वेल, एक्सरसाइज एज वेल, ठीक है, टेंशन मतलब। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, दैट मीन्स इमेजिन इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। एडजेसेंट एंगल have equal measure, but what do you know about properties of adjacent angle of a parallelogram? Okay, they are supplementary. What I want to say is x plus x is going to be equal to 180 degree because they are supplementary too, right? Adjacent angle है तो supplementary होगी। So 2x will be equal to 180 degree. So what is x will be equal to 90 degree. आ गया मेरा वैल्यू। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ a parallelogram। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 90 हो जाएगा, ये भी इसका अपोजिट 90 हो जाएगा। तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अगर सारे एंगल 90 हो गए तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखेगा, दिस विल बी सीन इन दिस मैनर, राइट, 90 90 90। कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज? ओके, टेल मी द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कैन यू टेल मी? यस, इट इज रेक्टेंगल। बट ये तो पैरेललोग्राम बोल रहा है एंड आ रहा है कुछ रेक्टेंगल, तो इज इट द क्वेश्चन मीन टू से कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम एज वेल? ओके, तो कुछ नहीं, मैं आपको बस यही पूछ रहा हूँ कि इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम। यू कैन सेंड मी दिस आंसर। तो आई विल राइट द क्वेश्चन, इज रेक्टेंगल बी, इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम, बी क्या कहा गया बीच में, इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बस टेक्स्ट करके भेज दो, ठीक है। और अगर होगा तो वो क्यों होगा उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके यू कैन कीप रेडी, ठीक है। कुछ नहीं, अगर आ रहा है तो, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द सेम कॉन्सेप्ट लेटर ऑन, सो डोंट वरी, इफ यू कैन डू जस्ट आंसर द क्वेश्चन टू मी, ठीक है। चलो एनीवे, एक्सरसाइज तो आपको कंप्लीट करना है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। ये तो वही है ना, वही बात बन गई, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं, मज़ा आता है एक्स वाई जेड फाइंड करने में। देख लो, सबसे पहली बात तो ये चीज़ है कि ये जो वाई दिख रहा है, वाई और ये 40 डिग्री, इसके बारे में कुछ रिलेशन होगा आपके पास? देख लो देख लो, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वाई आप फाइंड कर सकते हो, तो वाई आप लोगों को मिल जाएगा। देखो, एक्स के लिए आपको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यह एंगल आएगा 110 डिग्री। ओके, यूजिंग 110 डिग्री यू कैन फाइंड एक्स वैल्यू। सो नाउ यू हैव एक्स वैल्यू एज वेल। आई एम नॉट टेलिंग यू एवरीथिंग यू हैव टू डू, दैट्स द रीजन आई एम नॉट टेलिंग यू। देखो, आपको वाई मालूम है, यू गॉट दिस एंगल, चेक कर लो, यू गॉट दिस एंगल,
y भी आपको मालूम है, समझ लो y भी आपको मालूम है. यू कैन फाइंड z नाउ. तो नाउ यू कैन फाइंड z यूजिंग दिस टू एंगल्स y एंड 110. तो यू कैन फाइंड z. वो कैसे फाइंड करना है, दैट इज योर डील. यू हैव टू वर्क ऑन इट. ओके, सो थिंक अबाउट द क्वेश्चन. एवरीथिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू एक्सप्लेन. तो ये बहुत बार हमने किया हुआ है ये, लेकिन आपको कंप्लीट करना है. करेंगे, चलो. तो लेकिन रीज़न लिखो, ठीक से प्रेजेंट करो एंड देन सेंड इट टू मी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इन द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स, इट्स द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, डोंट वरी, आर पैरेललोग्राम. दे आर पैरेललोग्राम. ये जो दिख रहे हैं दोनों क्वाड्रिलेटरल, ये और ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है. फाइंड एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना है. चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. बहुत सिंपल सी बात है यार. Isn't it in this question opposite sides are going to be equal? So this gives me 3x is equals to 18. Okay, so what x will be equal to 6. हो गया, आंसर खत्म. ओके, x एंड y मिल गया मुझे. y कैसे मिलेगा, देख लो. opposite sides are equal, that means what, 3y minus 1 is equals to 26. 1 को उधर शिफ्ट हो गया. इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए. 3y is equals to 26 plus 1. So 3y is equals to 27. Y will be equal to 27 divided by 3. 3 9s are 27. That's it. It's a very simple idea, right? लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के बारे में आपको वर्क करना पड़ेगा इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो देखते हैं, दिखा तो मैं कैसे प्रेजेंट करना है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. देख ले, GS इज इक्वल्स टू UN, राइट. दैट इज देयरफॉर GS क्या है मेरा, 3x इज इक्वल्स टू 18. ये GS एंड UN इक्वल क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. तो ये इक्वल क्यों समझ में आ गया. x इक्वल टू 6 आ गया. कैसे आ गया पता है ना, 18 डिवाइड बाई 3, राइट. एंड वी हैव GU इज इक्वल्स टू NS which gives me 3y minus 1 is equals to 26. So 3y is equals to 27 implies y will be equal to 9. ये आ गया मुझे, ठीक है. सिमिलरली अगर मैंने इस सेकंड डायग्राम में इसको मैंने O कंसिडर किया, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस आंसर. ओके, तो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे सिंपल सी बात है. पहले UO इज इक्वल्स टू OS करो. ओके, you will get your y value and then RO is equals to ON करो, you get x value. ओके, ये क्यों इक्वल है, because diagonals bisect each other. You remember the property of parallelogram, diagonal bisect each other. तो ये सभी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और कुछ नहीं, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है सब कुछ. नाइन्थ क्वेश्चन. नाइन्थ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है. इन अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम. तो मैं क्या करता हूँ, आपके वो जो रिस्क है उसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड विच इज़ द रिस्क है. रिस्क RISK. तो ये रहा मेरा रिस्क, ठीक है. तो ये जो येलो कलर से किया हुआ है ये कौन है, पैरेललोग्राम है. एंड देन आई विल कलर द अदर वन एज वेल विद द ग्रीन. तो वो कौन सा है देख लो, क्लू है. तो क्लू भी क्या है समझने की कोशिश करो, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है. वो जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो भी एक पैरेललोग्राम है और जो येलो कलर दिख रहा है वो भी एक पैरेललोग्राम है. ओके, नाउ इट्स क्लियर. तो बस अभी येलो को देख लो. ओके, ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ किसको देखो, येलो को देख लो. तो इन केस इफ आई लुकिंग एट येलो कलर, देन आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो K है और ये जो S है ये किस कैटेगरी का है देख लो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है. तो कैन यू फाइंड आउट एंगल S. सो मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ. ये S है, ये E है और ये कुछ तो ऐसे X दिया हुआ है, राइट. तो यू कैन फाइंड एंगल S. कैसे, एंगल S प्लस K इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है. तो ये आ जाएगा 60. मेरा करना तो आपको है, देयर इज नो ऑप्शन. देन अभी एंगल EN ये जो गिवन है इसमें कुछ रिलेशन है क्या देख लो. ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ग्रीन वाले पैरेललोग्राम में, राइट. सो इजंट इट दैट एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल E क्या हो गया, 70 हो गया. अभी देख लो 70, 60 एंड ये X, दीज आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. तो आपको तो पता है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का एडिशन कितना होता है, 70 प्लस 60 प्लस X विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द X वैल्यू, दैट्स इट.
इजंट इट? सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल. लेकिन प्रेजेंट मैंने हिंट दिया है, प्रेजेंट तो आपको करना है, खुद से सॉल्व करना है. हो गया ऑलमोस्ट, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया. 10th एंड 11th रहेगा वो तो हम लोग कल देख लेंगे तो ईजिली. 10th ही रहेगा मुझे लगता है, 10th. ठीक है, तो इफ़ पॉसिबल यू कैन कंप्लीट दैट एज वेल एंड गेट इट डन, अदरवाइज आई एम टेकिंग इट टुमारो, नो प्रॉब्लम. तो दैट्स इट, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया. एक्सरसाइज नंबर कौन सा था ये? 3.3. Soon we are going to have test, remember, okay, but because so many days we are doing the work and we did not have any test, तो हम लोग फिक्स करते हैं इस दिन टेस्ट होगा. ठीक है, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे को हम लोग साइंस ले रहे हैं, थर्सडे को भी साइंस होगा, फ्राइडे को टेस्ट होगा आपका. ठीक है, फ्राइडे को टेस्ट. टॉपिक होगा इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, सेकेंड टॉपिक. ठीक है, तो व्हाई आई एम टेलिंग यू सो अर्ली, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेलिंग यू सो अर्ली? द रीजन ये है कि यू कैन प्रिपेयर, बी रेडी फॉर योर वर्क. जितना हो सके उतना इस टॉपिक को डीपली स्टडी करो. फिर से एवरी डे आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट जस्ट वन डे और द डे बिफोर द एग्जामिनेशन. नेवर स्टडी डे बिफोर द एग्जामिनेशन. Every day I'm telling you, work on the topic slowly. Few questions every day you have to take in the hand, try to solve it and get it done. So this is the way how you can prepare your mathematics. Never ever just prepare the mathematics one day before the examination. तो मैं मंडे को बोल रहा हूँ, देख लो, मंडे को बोल रहा हूँ. तो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है एंड थर्सडे है. तो ये 4 दिन है आपके पास. चारों दिन आपके टॉपिक को एवरी डे हाफ आवर, 15 मिनट, 1 आवर, जितना टाइम पॉसिबल बने उतने टाइम में उस टॉपिक को लो एंड एवरी डे प्रिपेयर करो. ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. यू हैव ऑलरेडी डन सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दैट कैटेगरी. ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ट्राई दोज क्वेश्चंस ऑल बाय योरसेल्फ, वर्क ऑन इट. डाउट पूछो, चलेगा मुझे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जो भी हो, वॉट एवर द थिंग इज, गेट इट डन इन दिस 4 days. ओके, सो वंस यू कंप्लीट दैट, ये अगर आज आप कंप्लीट करोगे, ये 4 दिनों में आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो होगा क्या, आपका PT1 का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा. लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट जस्ट प्रिपेयर योर PT1 जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, इजंट इट? तो हम लोग स्लोली क्या करेंगे, इन दिस वे विद द टेस्ट वी विल बी टेकिंग योर PT1 प्रिपरेशन एज वेल. ठीक है ना? तो ये अगर आप लोग आज या फ्राइडे तक कंप्लीट करोगे, आपका PT1 का एक टॉपिक बन गया, राइट? फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, तो फर्स्ट के लिए हम लोग एंड में ही प्रिपेयर करेंगे. लेकिन ये टॉपिक इक्वेशंस, राइट, ये टॉपिक आपको ठीक से प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखना है. ठीक है, तो फ्राइडे को एग्जैक्टली आपका टेस्ट होगा. टेस्ट होगा 30 मार्क्स का. वो कैसे कंडक्ट होगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो सब मैं बाद में आपको बताता हूँ. डोंट वरी, सारे इंस्ट्रक्शन आई विल प्रोवाइड यू. लेकिन टेस्ट तो बहुत सीरियसली कंडक्ट होता है एंड एट द सेम टाइम हर एक को अलग अलग सेट होता है. इट्स नॉट लाइक एवरी वन गेट द सेम सेट एंड देन यू कैन कॉल एंड आस्क एंड यू विल गेट योर आंसर. बिल्कुल नहीं, हर एक को अलग अलग होता है. यू आर नॉट अलाउड टू कॉल, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनी वन. ये क्वेश्चंस कभी आपके बुक में नहीं होंगे या फिर ऑलरेडी सॉल्व नहीं होंगे, आपको खुद से तो करना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो ऑप्शन. ठीक है, तो टेक थिंग्स सीरियसली एंड स्टार्ट वर्किंग. ओके, सो बाय बाय, सी यू next day with the last exercise and few more interesting properties about quadrilateral. So bye bye, see you tomorrow.